Now invite onto stage, first of all, Gulzar Saab. May I also invite Bhavdeep ji, Sumit Tappu, Bhavdeep ji. Can we get some mics for them? May I request Sumit to please first say a few words about being here, about the album, what the album means to him. I was told that the album came across. A big hand for Rakshanda Khan. Thank you, Rakshanda. Firstly, ladies and gentlemen, thank you for coming today. I'm so touched by all of you being here, by your presence. It truly means so much to all of us. So thank you for coming today. जब इतने ज़्यादा illustrious luminaries हो तो फिर इतनी तेज रोशनी की ज़रूरत पड़ती नहीं. रोशनी जो है सारी स्टेज पे है. This journey has been amazing. Absolutely incredible. And the man I'm sitting next to is a genius. Sumit, you have to tell us something new. Let me tell you. He just celebrated his 90th birthday on the 18th of August. But let me tell you something. You know, his energy is of a 60-year-old man. His spirit is like a 35-year-old. And his romantic expression is of a 21-year-old. I think he deserves a massive round of applause. I'm a dreamer, and since my childhood, I've always said to myself, you must reach out to the stars, and if you do that, then the stars will reach out back to you. I've dreamed big. I have many dreams, many fulfilled, many yet to be fulfilled. But I want to tell you something. This moment here, I never even dreamed or imagined in my wildest of dreams, imaginations. You can't dream of such a thing. And, you know, it's surreal that I'm sitting next to Gulzar Saab. It's surreal. Lucky is holding my hand, otherwise I think, you know, I'm in a dream, I'm sleeping. When I first got this opportunity, I had to pinch myself. And this goes back to the 30th of September last year. Rakshanda asked me. 30th September last year, we met. Bhavdeep ji and myself went to Gulzar Saab's house. And we met this amazing, amazing person with no expectation. We went simply to meet him, where Bhavdeep ji rekindled his relationship with Gulzar Saab. I sang. We had lemon tea together. Thank you so much. And Guruji बैठे हैं, उनका जिक्र कीजिए. And then it was Gulzar Saab's idea to do an album. And I was so taken aback because it was like, you know, am I actually hearing this in real, that, you know, he wants to do this album. Is so incredible. सुमित, आपको ऐसा नहीं लगता है अभी गुलजार साहब के घर पे बहुत सारे लेमन टी के सैशेस भेजे जाएंगे? All aspiring singers. चलिए लेमन टी पीते हैं. And this journey began where, you know, spending time with him, and this is done like the old times.
A lot of musicians here, you all will agree with this, that the times of yore, which I only read and heard about, that you all sit together and you make music together. These days everything is computerized. आजकल तो compositions phone में ही बता देते हैं, lyrics phone में बोल देते हैं, WhatsApp कर देते हैं. But this 11-month journey that we've had, and Bhavdeep ji will also speak about this as well. We sat with him, in this most beautiful times together where we got to know about, the man behind the words, his philosophy, his brilliance, and it was so incredible, to do this whole album. And this 11-month journey has been a masterclass, for me, a masterclass in poetry and literature. It's been so incredible. And above all, above the poetic brilliance, I must share this. Gulzar Saab didn't treat me like a singer, but he gave me the love that a grandfather would give his grandson. It was, and I learned so much from him, and I thank you from the bottom of my heart. And I thank each and every one of you. I must say something about Bhavdeep ji. These most beautiful, incredible words needed that level of composition in the music. And Bhavdeep ji delivered. The way that he has composed these songs, he deserves a big round of applause for that. He too has brought these words into musical life. And I thank him. I thank all the artists, musicians who are part of this album. Each and every one of you from the bottom of my heart. Sanjay Japurwale, the music producer, thank you Sanjay bhai. All the musicians, Vijay Dayal, Harshil, Anand, who are part of the production team. The video, which we will see a bit later on, Gitesh, Parth, Pratham, the entire creative team, so many people who are part of it. We've actually put a hoarding or poster outside with everyone's names on it because we're really grateful to everyone. This is very important to each and every one of us. And I want to thank my family, my wife Krupali, my mother and father, Mahendra and Maya, my daughters, Saisha and Meera. They sacrificed a lot for me, so I want to thank them from the bottom of my heart. And such moments are not possible without the blessings of God. It's simply not possible for a singer like me to be sitting here. It's not possible. So thank you Bhagwan, thank you Sadhguru, thank you to all the elders, my Guru Anup Jarota ji, all the elders, and to all of you who are here today, and all of you, and so many people who have who have sent messages. And I'm so grateful to see such incredible elders who will be coming on stage soon. Thank you for coming here today, blessing me. Lots of love to all of you. Thank you. May I now request Bhavdeep ji to please say something to add more to how this album actually came into being, other than with the lemon tea. उसके अलावा और कितना काम करवाया है आपने सुमित से? नमस्कार। बहुत मेहनत करवाई मैंने इससे। वो थोड़ी आपकी रेपुटेशन भी है और आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले गुलजार साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमारी अर्ज़ी को माना और इतने खूबसूरत गाने इन्होंने हमें दिए। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जिस तरह पुराने ज़माने में शब्दों के ऊपर गाना कंपोज होता था, ये एल्बम उस तरह से कंपोज हुआ है। आजकल आप लोग ज़्यादातर यहाँ म्यूज़िशंस हैं, मेरे भाई बंधु सब बैठे हुए हैं, सभी लोग पहले तर्ज बनाते हैं और उसके ऊपर लिरिक्स राइटर लिखता है। तो वो जब लिखता है तो वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि खाना पूर्ति होती है,
फिल इन द ब्लैंक्स। मगर इस एल्बम में दिल परेशान करता है हमें, ऐसा नहीं हुआ है। और क्योंकि मैं घरानेदार म्यूजिशियन हूँ, मेरे दादा गुणी गंधर्व पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, मेरे पिता पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले, मेरे चाचा पंडित गिरधर प्रसाद जयपुर वाले, सब बड़े कलाकार हुए अपने वक्त के। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे रागों से दूर नहीं जाना है। तो 7 गज़लें और गीतों का ये जो गुलदस्ता है जो गुलजार साहब ने लिखा, उसे मैंने 7 अलग रागों में कंपोज किया है। अब लाइट म्यूज़िक है तो प्योर राग नहीं होता, उसमें मिश्र हो जाता है, लेकिन बेस किसी न किसी राग का ज़रूर है, जो आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुमीत का कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये गाने कंपोज कर सका और मुझे फिर से एक बार गुलजार साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मैं आपको एक और बात बताऊं कि गुलजार साहब के साथ काम करते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। तो गुलजार साहब और मैं सिल्वर जुबली मना रहे हैं, 25 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और इनका हमेशा बहुत आशीर्वाद रहा है मुझ पर। मेरे जो म्यूज़िशियन भाई हैं, मेरा छोटा भाई संजय जयपुर वाले जिसने म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है इस एल्बम में, ज़ोरदार तालियां उसके लिए। और मेरे जितने म्यूज़िशंस भाई जो इस एल्बम में जुड़े हैं, सबका नाम बाहर सुमित ने बहुत प्यार से दिया है। और मेरे इंजीनियर्स आनंद डबरे एलएम स्टूडियो के, जिन्होंने ये पूरा एल्बम रिकॉर्ड किया, फिर विजय दयाल यशास स्टूडियो के, उन्होंने गाने मिक्स किए हैं, हर्षिल पाठक उन्होंने भी गाने मिक्स किए हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दिल परेशान करता है आपको सुनते वक्त परेशान नहीं करेगा, खुशी देगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे मित्र फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ मौजूद हैं और हमारे सबसे बुज़ुर्ग पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी यहाँ हैं, आशीर्वाद देने के लिए ख़ास तौर पर आए हैं। फिर अनूप भाई साहब हैं, अनिल शर्मा जी हैं, भाई ललित पंडित जी हैं, जेडी मजेठिया हैं, रोनू भाई हैं, कृष्णा हेगड़े जी हैं, घनश्याम वासवानी जी हैं, अपने अशोक खोसला जी हैं और निखिल कामत जी हैं, वैशाली सामंत हैं। और मेरे बचपन के, मैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त फ़ैन था, अगर मैं कलाकार नहीं बनता तो शायद क्रिकेटर बनता, जो मुझे बनने से मेरे पिताजी ने रोक दिया। तो हमारे लेजेंड सुनील गावस्कर जी यहाँ मौजूद हैं और जिनको हमने साक्षात राम के रूप में देखा है, अरुण गोविल जी यहाँ मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियां इन सब के लिए। कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, दुर्गा झचरा जी मेरी बहन यहाँ हैं, दीपक पंडित यहाँ हैं, फिर मेरे चाचा पंडित लघु प्रसाद जी हैं, संदीप महावीर हैं, राजीव महावीर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस एल्बम का हिस्सा बना और मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर कर सकूं। शुक्रिया, थैंक यू। सुमित, लगता है आज इंडस्ट्री में हॉलिडे डिक्लेयर हो गया होगा क्योंकि सारे लोग तो यहीं आ गए। चलिए, अब उस वक्त का, जिस वक्त का इंतज़ार हम कर रहे थे गुलजार साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप कुछ बताएं कि ये 2 लोग जब आपके पास इल्तिजा लेकर आए थे तो उस ग्रीन टी में ऐसा क्या मिलाया था इन्होंने कि आपने हाँ कर दी? जी, ना तो मैं कभी भी नहीं करता, कभी ये कह के आपने खुद को मुश्किल में डाल दिया है। मैं तो आपको भी कभी ना नहीं की। आप तो सर, सीधा ही मैं कभी सिंगर बनने आई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं गाना गाना चाहती हूँ। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मुझे म्यूजिक समझ नहीं आता। आप प्लीज़ 1-2 गाने मेरे लिए लिख दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भवदीप जी ने फ़ोन किया कि मैं किस वक्त आ सकता हूँ। मैं कहा, अगर आपको अभी फुर्सत हो तो आप अभी आ जाइए, वरना आप वक्त बता दीजिए। भवदीप जी के साथ, जैसे उन्होंने बताया, 25 साल से एसोसिएशन है उनके साथ। आविदा जी ने जब कबीर गाया था तो उस ज़माने में वो म्यूज़िक भी आप ही का दिया हुआ था। अमजद अली खान साहब के साथ
एक वादा नाम से एल्बम की थी, तब भी आप ही थे वहाँ पे, सारा म्यूजिशियन, सारा म्यूज़िक अरेंज किया था। तो उसके अलावा बैठकों में, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में मुसलसल हमेशा मुलाकात होती रही भवदीप जी से। और मैं तो बल्कि कहा भी है मैंने कहीं एल्बम ही में शायद या किसी जगह कि भवदीप जयपुर वाले, वो मैं जयपुर वाले भवदीप, भवदीप जयपुर वाले कहते रहता हूँ। और ये भी कहा मैंने कि भाई वो कहीं के भी होते इतने ही सुरीले होते। हाँ, वो ज़रूरी नहीं था कि जयपुर वाले ही होते तो। और सुनते, और वो एक एसोसिएशन, मैं क्योंकि खुद बड़ा बेसुरा हूँ, न कभी गाया न गुनगुनाया, लेकिन अब लेकिन जो गाते हैं उस पर रश्क तो ज़रूर करता हूँ और अच्छा लगता है सुन के। मेरे सामने बैठे हैं हरी भाई, अब उनकी जवानी में मैंने अपना बचपन गुजारा है। हाँ, पंचम के साथ, और पंचम के साथ महफिल में जब भी जमते थे तब से, उस ज़माने से। और रोनू हैं, बताइए, उनको भी याद होगा, पंकज जी हैं बैठे हुए सब। तो मैं ये कहूँ कि अगर आप किंडरगार्टन हैं सारे, तो मैं फिर अभी बालिग भी नहीं हुआ, मैं तो नाबालिग हूँ, दाखिल हुआ हूँ। लेकिन ये स्वर की दुनिया, वो पंडित बैठे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं, दीपक पंडित हैं, उनसे। और एक एसोसिएशन तो किसी न किसी वजह से म्यूज़िक के साथ लगी रही, पर हारमोनियम पे नहीं बैठ सका, वो नहीं कर सका। ज़रूर कोशिश ज़रूर करता अगर तो फिर उस तरफ निकल जाता हूँ। समंदर है बहुत बड़ा। मैंने तो सबसे आसान रास्ता ढूंढा कि भाई लिख लो और साथ साथ चलते चलो, जो धुन बनाते हैं उनके साथ चलते चलो। तो लिखने का एक रास्ता ढूंढ लिया चलने का। और उन्होंने कहा कि मैं साथ में किसी को लेकर आ रहा हूँ, तो आप बताइए। मैं सुमित आ गए साथ में, और इनको देखा पहली बार, और बड़े मध्यम बोलते हैं, बहुत मध्यम आवाज़ में। आपने अभी भी देखा कितना मध्यम बोलते हैं, और मेरा ख्याल है वो सब कोई कहीं कोमल सुर ही में करते हैं बात। हाँ, तो बस आए, उन्होंने कुछ जिक्र किया, कुछ एक कॉम्पोजिशन का जिक्र किया, कोई गज़ल का जिक्र हो गया। भाई बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। और क्योंकि वरना वो ध्यान जाता कि ये तो देख रहा है मुझे। तो गज़ल का जिक्र शुरू हुआ, गज़ल की बात हुई कि गज़ल करना चाहते हैं। तो वो कि कौन सा था आपके पिताजी ने जो गाया था कि तुमने तो दिल पे इख्तियार किया, तो इनके पिताजी ने किया था। तो मैं तो अपनी सादगी से कह रहा था कि तुमने तो दिल पे इख्तियार किया, भाई हमसे होता नहीं हज़ार किया। तुमने आदतन कर दिए वादे, और हमने आदतन एतबार किया। तो इस तरह से चलती रही हमारी। तो वहाँ से बात शुरू हुई। तो सुमित को तूने, अच्छा मेरे यहाँ हारमोनियम है एक, मैं हेमंत कुमार जी ने, हेमंत दा ने ला के कलकत्ता से दिया था, वहाँ पे बैठा, उसको मेंटेन करता रहा मैं, और वो अब भी है वहाँ। उस पर सलीलदा ने भी आपके पंचम जब दिल पड़ोसी है बना रहे थे हम, वो तो तब भी वो तंग आ जाता था। आशा जी बार बार याद दिला देती थी, देखो देखो वो एल्बम करनी है, देखो देखो वो एल्बम करनी है। तो तंग आ जाता था, तो म्यूज़िक रूम से उठ के कहता था, अच्छा चल वो फालतू काम तेरे घर पे करते हैं। तो वो फालतू काम दिल पड़ोसी है जो आपके सामने आते हैं, और वो तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा हारमोनियम रखूँ उसे मेंटेन। कहने लगे ज़रा इसको सुर ठीक कराने हैं। तो भवदीप जी ने
ट्यूनिंग के लिए फिर से भेज दिया। विशाल आते थे तो विशाल ट्यूनिंग के लिए भेज देते थे। मतलब वो आप यकीन मानिए वो हारमोनियम नहीं, ये मेरी ट्यूनिंग करते रहे सबके साथ, जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए ये सारे कंपोजर मुझे ट्यून करते रहे कि अब तो ठीक लफ्ज़ लिखो, अब तो कोई सही मीटर में लिख लो, अब तो वज़न ठीक रखो अल्फाज का। तो इस सूरत में वो ट्यूनिंग हुआ। एंड सुमीत ने उन्होंने कुछ बंदिश है कोई बताया कि वो सुनाओ, और वो आवाज़ बड़ी खूबसूरत, बड़े कोमल सी और बड़े आराम से, वो वाकई वो समा गई अंदर। तो कोई वजह नहीं बनती कि उसके बाद मैं इन दोनों के साथ शामिल ना हो जाऊं। आपने पूछा तो मैं, उसके बाद मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे अल्फाज उन्हें पसंद आ गए, और अब सुमीत गाते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हुए भी अच्छा लगता है। और ये समझिए कि बस वो अल्फाज को पनाह मिल गई जाके इनके पास, इनकी आवाज़ में जगह मिल गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। These are sessions that must have been a lot of fun, Sumit. You should have recorded them and we could have played some of the sessions here. That would have been amazing to just see. कि ये जो दिल परेशान करता है, मैं किसने किसको कितना परेशान किया, या किसकी परेशानी सुलझ गई. Because those would be really insightful to watch. But time now for us to watch the actual album and time to release the albums. And for that, I would like to invite onto stage a few guests of honor, please. May I first of all invite Dr. Krupali, जो खुद बहुत कोमल सुर में बोलती हैं. आइए please. सुमित की better half. It's very tough to make out who is the better half out of the two of you, because you do, both of you do such immense good work. Sumit ke पिताजी, Mahendra Tappu. Good evening, sir. Welcome. From the team, may I invite Mr. Sanjay Jaipurwale. Sanjay bhai. Gitesh Yadav, Parth Dubey, Pratham Chaurasya, Vijay Dayal, Harshil Pathak, and Anand Dabre. May I also take this opportunity to invite onto stage our guests of honor. सबसे पहले Padma Vibhushan Pandit Hariprasad Chaurasya ji. The evergreen young man of the Ghazal world, please welcome Padma Shri Anup Jalota ji. Padma Shri Suresh Vadkar ji. Suresh ji is here. Is he here? Okay, he hasn't come as yet. Shri Anil Sharma ji. Shri Abhishek Chaube, Shri Ravi Udyavar, Shri Ashok Khosla ji, Shri Chandan Das ji, Shri Ghanshyam Vaswani ji, Shri Shyam Singhania ji, and of course the man who inspired not just millions but actually a billion, Shri Sunil Gavaskar ji. Shri Lalit Pandit ji, may I request you to please come on stage. और मेरे हम उम्र JD मजेठिया जी.
And of course, we need divine intervention. May I please invite onto stage Shri Arun Govil ji. Sorry, my fault. Arun ji. It's time now for the official unveiling of the album. सबसे पहले तो पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को प्रणाम। अरे बहुत खुशी हुई, आपका आना ही हम सब के लिए आशीर्वाद है। आज संगीत जगत के ये पितामह हैं, पितामह। हम लोग सब बहुत इज्जत करते हैं इनकी। गुलजार साहब के लिए एक शेर है। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे कोई था ही नहीं। गुलजार साहब का एक कलाम जो गा देता है उसका सारी दुनिया में नाम हो जाता है। यहाँ तो 7 गाने गा दिए। सोचिए कितने किस्मत वाले हैं सुमित। सुमित से मेरा संबंध है जब ये 3 साल का था। मेरी गोदी में बैठे हुए इसकी तस्वीर है। फिजी में मैं गया था कॉन्सर्ट करने और तब से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। और आज देखिए जो मैं नहीं कर पाया वो इसने कर लिया। शागिर्द ने नाम रोशन कर दिया आपका अनूप जी। बहुत, मेरा तो बहुत नाम रोशन किया। मुझे इसकी बहुत खुशी है। और सच यही है कि जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए ना तो उससे बड़ा दिन गुरु के लिए दूसरा नहीं होता। वो इन्होंने करके दिखाया। हमारे बीच सुनील गावस्कर जी हैं, वो भी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं भी हूँ। तो हम लोगों ने साईं बाबा
का आशीर्वाद लेकर न जाने कितनी बार पुट्टपर्ती में जाके गाया है, तो उसका असर हुआ है। आज हम लोग इस जगह पे खड़े हैं। ये एल्बम के जो 2 गाने मैंने सुने, देखिए लिरिक्स के लिए तो कुछ कहना नहीं है, तो उसके लिए जो शब्द चुनने हैं वो मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से मैं चुनूंगा वो वर्ड्स। लेकिन सुमीत के लिए कहना चाहता हूँ कि सुमीत ने जिस कॉन्फिडेंस से इतनी अच्छी कंपोजिशंस को पेश किया है और गुलजार साहब के अल्फाज को, एक एक अल्फाज को इतनी खूबसूरत ढंग से जो शक्ल दी है, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सुमीत के लिए बहुत बड़ी तालियां होनी चाहिए, ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। भवदीप जयपुर वाला जी तो ख़ानदानी कलाकार हैं, बहुत बड़ी फैमिली से हैं। मैं इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, भवदीप जी का भी फ़ैन हूँ। कितनी खुशी आज हो रही होगी सुमीत के माता पिता को, जो ख़ास आज के फंक्शन के लिए फिजी आइलैंड से यहाँ आए हैं। देखिए, फिजी से आगे कोई देश नहीं है, वो बिल्कुल आखिरी देश है इस ग्लोब में, उसके आगे कोई देश है ही नहीं। तो वहाँ से आना जाना कोई मजाक है? तो ये वहाँ के हैं, जहाँ से आगे वो समुद्र है ना, बस वही है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वहाँ से ये आते हैं और इतना विशाल हृदय है इस परिवार का कि जैसा कि रक्षंदा जी ने आपको बताया कि जो हॉस्पिटल इन्होंने वहाँ बनाया है, उसमें एक दरवाजे से जाइए, सर्जरी करवाइए हार्ट की, और दूसरे दरवाजे से निकल जाइए। कोई बिलिंग सेक्शन है ही नहीं, आपको रुकना ही नहीं है कि बिल क्या है, वो बात नहीं, जाइए आराम से। इतना बड़ा काम तो बिल गेट्स ने भी नहीं किया। बिल गेट्स ने जो हॉस्पिटल बनाया उसको 50% डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ 100% डिस्काउंट है। आइए, काम कराइए, जाइए। तो जो मनुष्य इतना बड़ा काम अपने जीवन में करेगा, तो उस पर सरस्वती भी तो खुश होंगी, सुर भी तो देंगे इनको। तो आज देख के मुझे गर्व हो रहा है कि सुमीत ने इतना बड़ा काम किया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए, और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। सब ने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया। थैंक यू अनूप जी। ले आपने जाऊं? कुछ ये आपका रिटर्न गिफ्ट है। नमस्कार। अगर ऊंचाई की आदत होती तो मेरी हाइट इतनी नहीं होती, पर मैं सोच रहा था कि क्या मैं हिंदी में बोलूं या अंग्रेज़ी में बोलूं। जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरे पास शायद हिंदी के 2 या 4 ही शब्द हुआ करते थे, शुक्रिया, रियली? कृपया। पर जब कानपुर की लड़की के साथ शादी की और अगले 23 तारीख को, आज 23 तारीख है, सितंबर के 23 तारीख को हमारे 50 साल होंगे। वो क्या बात है। Congratulations in advance, sir. Thank you. यहाँ पे भी हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी, हाँ। तो वहाँ से थोड़ी बहुत हिंदी बोलने की आदत पड़ गई। बट 2 अभी- सही शब्द आप जानते थे, शुक्रिया और कृपया। ये 2 शब्द लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो शुक्रिया गाय का, क्या कृपया। आपने कृपया बोला ना, उसका शुक्रिया। उसका वो शुक्रिया भी आप ही बोलेंगे। तो उसके बाद में जब गाने सुनता था, हिंदी फिल्मों के गाने तो बहुत सुना करता था, पर उसमें कभी कभी एक ही तकलीफ होती थी कि कुछ ऐसे लफ्ज़ थे, वो मतलब क्रिकेट में बाउंसर होते हैं ना, सर के ऊपर से निकल जाते थे, समझ में नहीं आता था। तो ये जो सफ़ेद कुर्ते में बैठे, इनके लिरिक्स आप कैसे समझते थे? इनके लिरिक्स काफ़ी आसान थे, मतलब सुनने के लिए थोड़े से बहुत मतलब आउटस्विंग और इनस्विंग हुआ करते थे, पर अगर आपकी बैकलिफ्ट ज़्यादा ना हो तो फिर उसका भी आप सामना कर सकते थे। पर जो बाउंसर होते थे
तो बाउंसर, जैसे कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स के बाउंसर खेलेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है, पर इन लफ्ज़ों से, शब्दों से जो बाउंसर थे वो मीठे बाउंसर थे, हल्के से बाउंसर थे, हवा देते थे। आपके चेहरे के नज़दीक से जब गेंद निकल जाती थी 90 माइल्स पर आवर में, थोड़ी सी हवा निकल जाती थी। ये इनके अंदर का जो शायर है वो मुझे तो पहली बार दिखाई दे रहा है। उसके बाद में काफ़ी कुछ प्रयास किया हिंदी सीखने का। अभी हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा हूँ, और ये जो गाने हमने सुने बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, कोई भी हो, पर ख़ास करके अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो जब आपके रन बनते हैं ना, तो आपका जो संगीत होता है वो अलग से टेम्पो का संगीत होता है। और जब आप पहले गेंद पर आउट होते हैं तो आपके संगीत का टेम्पो कुछ अलग सा होता है। पर बात सही है कि जो भी हो, आपने सेंचुरी की हो या पहली गेंद पर अगर आप आउट हो गए, संगीत जो दिलासा देता है वो और कुछ नहीं देता। और वो सुनकर जो मज़ा आता है वो एक अलग सा मज़ा है। अभी अभी अनूप जी ने जिक्र किया कि फिजी के आगे कुछ है नहीं, सिर्फ समंदर ही है। और हमने अभी समंदर का गाना भी सुना, समंदर समंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समंदर जितना वास्ट है, उतना ही ये जो एल्बम है उतने ही सारे लोगों तक पहुँचे, और वो सारे सुनकर, सब संगीत वो सुनकर बहुत बहुत खुश हो गए। गुलजार जी, हरिप्रसाद जी, भावदीप जी और सुमित जी, जिनके साथ हम सत्य साई बाबा के कार्य में जुड़े हैं। यही है ओनली दिल नो बिल। अभी कल खारगर में भी एक प्रोग्राम होना है हमारे हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, बधाई आप सबको, और आप सबको भी कि इतनी पेशेंस से, जो मैं पेशेंस दिखाता था ग्राउंड पर, क्रीज पर, उतनी पेशेंस से आपने मुझे सुन लिया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू। सुमित, आपकी किस्मत तो सबसे पहले मैं जेडी मजेठिया, जोरदार तालियां इनके लिए। ये भी कुछ कहें, मैं चाहता हूं कि सब लोग कुछ ना कुछ, जो दो गाने आप लोगों ने सुने उसके बारे में अपनी राय प्रकट करें। आप प्लीज़ मेरे साथ आइए, डॉक्टर प्लीज़ आप भी आइए। मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ 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 आइए, और सुमित आप भी आइए, प्लीज़ प्लीज़ सर। देखो, सबको कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, सारे सेलिब्रिटीज जब बोलते हैं, और मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ आइए। बहुत ही आप भी आइए। मैं एक इन सब के बीच, गुलजार साहब, मैं आपको यहाँ बुला सकूँ, आपके साथ खड़ा रह सकूँ, उतना सक्षम अपने आप को नहीं मानता हूँ। आपको अब मैं यहीं से कुछ ऐसा कहना चाहूँगा। बहुदीप मेरे कॉलेज के मित्र हैं, और उनकी कला के बारे में बहुत दिग्गज लोग हैं जो संगीत समझते हैं। मैं तो संगीत सुनता हूँ, ज़्यादा थोड़ा मज़े लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी शक्ति नहीं है किसी के संगीत के बारे में बोलने की। सुमित, आपकी आवाज़ बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है, सरल। जितनी तारीफ गुलजार साहब ने आपके शब्दों की करी, आपकी आवाज़ की करी। मैं बैठा था अनूप जी के बारे में, तो आपकी एक दो झलक देख के ना, मुझे आप में अनूप जी दिख रहे थे। मैं आप में से भी, अब जब ये वीडियो वापस देखे, अब देखेगा, आपको यंग अनूप जलोटा जी दिखेंगे। मेरे को लगा मैं बोलूँ भी, पर मेरा संगीत के बीच में बोलना योग्य नहीं होता है। कहीं कुछ कला का, कुछ थिएटर से हूँ, तो हमेशा मुझे लगता है कि नहीं, कभी भी कुछ भी कोई परफॉर्मेंस चलता है तो बातें नहीं करनी चाहिए। अब मैंने सबसे बड़े इनके माँ बाप को यहाँ लाने की ये कोशिश इसलिए की, क्योंकि मैंने आके, जो थोड़ा लेट आते हैं ना, वो गलतियाँ कर देते, कहीं भी बैठ जाने की कोशिश में कहीं बैठ जाते। तो ये मुझे पता नहीं था कि सुमित के माताजी और पिताजी हैं। तो एक जगह थी, अरे सॉरी वाइफ, आई एम सॉरी, नहीं मुझे अब भी नहीं मालूम है। देखिए, मैं इसलिए इनको ले आया, मुझे अब भी नहीं मालूम। तो ये बातें कर रहे थे, और मैं ना आके हड़बड़ाहट में इनके बीच में बैठ गया, दोनों के बीच में, इनके रिलेटिव्स के बीच में। तो इनका एक वार्तालाप जो था वो मैंने बंद कर दिया था, और इनकी खुशियों में मैंने एक बाधा डाल दी थी। तो मुझे लगा इनकी स्टेज पर आके माफ़ी मांगी जाए कि इतना ही। ये होता है, फैमिली का जब फंक्शन होता है ना, तब सबसे ज़्यादा आनंद, ये तो सब मित्र हैं, इतने कला, हम तो सब गेस्ट हैं, पर जो परिवार होता है ना, उनके चेहरे पे एक जो आनंद होता है ना, वो मुझे लगा मैंने उसमें कहीं विक्षेप डाल दिया, तो मैं सॉरी बोलना चाहता था। एंड गुलजार साहब,
आपका सिर्फ मैं नहीं, यहाँ जितने बैठे हैं, सबके सब आपके इतने बड़े फैंस हैं। मैं आपको एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ यहाँ से कि सोशल मीडिया पे कुछ 5, 7, 8 लोग आपके नाम से अकाउंट चलाते हैं। गुलजार जी के नाम से कुछ भी लिख दो, आपकी तस्वीर लिखे, किसी के भी शब्द, आपके शब्दों में इतनी शक्ति है। कोई अपने शब्द भी आपके नाम से लिख देता है तो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाते हैं सर। तो आप आज भी सोशल मीडिया पे, आज भी मैं तो अपने आप को यंग नहीं कह सकता, पर जो भी है इस दुनिया में जितने जहीं शब्द को अगर कोई शक्ति देनी हो, कोई पावर देना हो, तो उसके साथ गुलजार साहब लिख दीजिए, शब्दों को अपने आप शक्ति मिल जाती है। माई बेस्ट विशेष सुमित, माई बेस्ट विशेष भवदीप, और सर बेस्ट विशेष टू यू। ये बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त एल्बम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे, जिनको हमने भगवान राम के रूप में देखा है, अरुण गोविल जी को, कि प्लीज़ आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और जो आपने 2 गाने सुने उनके बारे में कुछ शब्द कहें और आशीर्वाद दें हमें। जय श्री राम। मैं जब पहली बार सुमित से मिला था तो जय श्री राम बोलकर ही मिला था, क्योंकि हम दोनों, ये मुझे फीजी ले जा रहे थे रामायण के बारे में कुछ बातें करने के लिए। तब मैं पहली बार इनसे मिला था। हमने कुछ शोज़ वहाँ किए थे जिसमें मैं रामायण को अपने हिसाब से मैंने क्या समझा है रामायण को, उसको एक ड्रामेटिक अंदाज में मैं नरेट करता था, और उसमें बीच में सुमित रामायण के श्री राम जी के भजन गाते थे। वो प्रोग्राम हमने किया था, उस तरह से हम साथ साथ जुड़े। उसके बाद बहुत बार मिलते रहे और आज यहाँ दिल परेशान करता है। वो दिल ही क्या जो परेशान ना करे। दिमाग होता है, सोच सकते हैं हम ठीक ठाक बातें, सही रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन दिल ना, कभी सीधा नहीं सोच पाता। तो टाइटल जो है वो अपने आप में सार्थक है बिल्कुल। और ये टाइटल सुमित किसने दिया है इस एल्बम को? और कोई दे भी नहीं सकता था। गुलजार साहब के बारे में कुछ कहना, कितना भी कहा जा सकता है, और शब्द शायद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में जो कहना है वो ख़त्म नहीं हो पाता। अभी जब वो यहाँ बैठे थे, जब मैम ने उनसे पूछा था कि आप बताएं इस एल्बम के बारे में, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मेरे जब ये लोग आए दोनों, तो म्यूज़िक की बातें हुई, ये हुआ, और मैंने कुछ लिखा, मेरे शब्दों को पनाह मिल गई। उफ़, ये जो तीर है ना, जो यहाँ लगते हैं, जिनसे परेशान होता है, ये सिर्फ ये शख्सियत कर सकती है। जब इनका लिखा हुआ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमेशा यही लगता है कि अरे हाँ, ये तो सही बात है, ये अब तक समझ में क्यों नहीं आई थी, आज क्यों समझ में आई है। तो कितनी ही बातें गुलजार साहब यूं ही समझा देते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। उन्होंने लिखा हो, सुमित ने गाया हो, भावदीप जी का संगीत हो, तो अपने आप में वो सब कुछ पूरा हो जाता है बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो अनूप जी ने मुझे मिलाया था इनसे, और मैं आपको तो बधाई देना चाहूँगा ही, आपको भी बधाई दूंगा, साथ ही साथ अनूप जी को भी बधाई दूंगा कि उनका शिष्य आज यहाँ पहुँच गया है, और उसके साथ ये शख्सियत जुड़ी है। सर, मैं आपको बधाई देने की गलती नहीं करूँगा ना, वो बहुत ही गलत सी बात होगी कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन इस एल्बम के लिए भी मैं वहाँ आकर आपके पाँव ज़रूर छूना चाहूँगा।
मुझे इतनी इजाज़त आप दे दें बस, मैं अभी वहाँ आता हूँ और आपके मैं पाँव छूँगा। और ऑल द बेस्ट आपको और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जय श्री राम एक बार फिर से। Thank you, Arun ji. Thank you so much. मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई नितिन मुकेश जी भी पधार चुके हैं, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। Can we get a chair? Can we get a chair? Show chair. Chair. Sir, there's a chair. No, I like this. Prefer this? Okay. Prefer this right in front of him. माफ़ कीजिए अगर ज़बान लड़खड़ाए। जिनको मैं आज सुमित से तो मिलने आया ही हूँ, भवदीप जी को बधाई देने तो आया ही हूँ, मगर जिनको मैं 50 years now, I'm not good at mathematics, maybe more than 50. I met him in 1970. मेरे लिए तो भगवान की तरह हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ मैं उनका सबसे जूनियर असिस्टेंट था। मैंने आनंद फिल्म में जब उन्हें ज्वाइन किया, उस वक़्त से ही अगर प्रेरणा एक अच्छे इंसान की, कवि तो ये महान हैं ही, लिरिक्स तो, but as a human being, I tell you, I think in this room I must be one of the few blessed people who know him for over 4 decades. पापा के लिए, पापा ने भी उनके साथ गाने गाए, मगर मैंने उनके साथ उनके अंडर में काम किया है, उनका स्नेह पाया है, और एक अच्छा कलाकार, अच्छा इंसान बनना कैसे, वो उनसे सीखा है। गुलजार भाई, आपको प्रणाम फिर से करता हूँ। भगवान आपको, देखिए मैं तो अब खड़ा रहने भी लायक नहीं रहा थोड़ा पहले से ही वज़न था, मगर आज आपको देखने आया हूँ। आई थिंक एक ऊर्जा, नई ऊर्जा मिलेगी आपसे। दूसरी बात ये है कि ये खुशकिस्मती देखिए कि जिन्हें आँखों से देखना मुद्दत हो जाती है, हफ्ते में 2 बार हरि जी के चरण स्पर्श कर सका। परसों इस्कॉन में आपके पाँव छूने का वो मौका मिला, और आज जिन्हें 40-50 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं, गुलजार भाई के दर्शन आज हुए। एंड सबसे पहले he called me by, I thought I will call him by that name, but he called me by that beautiful name that he used to call me when I was a young 18-year-old assistant. He called me MD, my dear, my dear. तो बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि मैं MD हूँ तो गुलजार साहब का सबसे प्रिय होऊंगा। फिर मेरे अपने बनने लगी, तो एक दिन विनोद खन्ना जी से मुलाकात की, तो मैंने बोला गुलजार भाई कितने अच्छे हैं, मुझे MD बुलाते हैं। तुम्हें भी बुलाते हैं MD? मैंने बोला अच्छा, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रही विनोद, हम दोनों ही एक दिल के 2 अरमान हैं इन गुलजार साहब के। वी लव यू गुलजार भाई। 3 ये जिक्र शुरू हुआ था रोम उसुप्पी के यहाँ से, और हम लोग आपस में
अब एमडी सुनो, बात सुनो। एमडी मैं खड़ा होकर बता दूं कि एमडी कह के बुलाया करते थे हमें जैसे को, और किसी को कोई पता नहीं, कोई ये एमडी क्यों बुलाते हैं, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस एमडी इसका नाम रख दीजिए। तो वो कोई मेडिकल होगा, कुछ फलाना होगा, और ये सिर्फ रोमू सिप्पी थे और नितिन थे और विनोद थे। एक शख्स और था उसमें मेरे अपने किताब में, जो सुन सुन के हमको एमडी कहने लग गया, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं कि ये किसके लिए, वो शत्रुघ्न थे, तो एमडी बुलाते रहे। उसका और कोई उसकी वजह नहीं है, ये सीक्रेट मेरा ख्याल है आज भी रहे तो अच्छा है, या बता दूं तो लेकिन ये मेरे एमडी हैं। जीते रहो। इनको देखते ही इसलिए मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा एमडी, तो बुला लिया। बोलने का मौका मिला है, माइक मेरे हाथ में है, तो मैं एक और बहुत खूबसूरत महेंद्र भाई ओळखो छो मने, ओळख्या मने। अनूप ने जैसे बताया कि इसको गोद में खिलाया, वो यू बॉर्न व्हेन आई वेंट इन 84? नहीं, ही सेइंग कि आई ऑल्सो सैट ऑन योर लैप, सो दैट मस्ट बी सम लैप मगर हाँ, मुझे जब इसने अनूप के घर पे बहुत बरसों बाद परिचय हुआ मेरा, ये बच्चे मेरे लिए तो बेटा ही है, तो इसने बताया कि नितिन अंकल, आई एम सुमित टप्पू। आई सेड वेट अ मिनट, दिस सरनेम, आर यू महेंद्र भाई's son? And he said, I am Mahendra ji's son. I said, I remember him from 1984 when I went to Fiji with Lata Didi. And he was one of the, I mean, Anup ne to और उनके गुण बताए, मगर what a fine host, fine gentleman. आपके दिए संस्कार आपके बेटे में हैं महेंद्र भाई, और फिर अनूप के चरणों में मैं कहूँगा, अनूप के दिल में उसे जगह मिली है और ट्रेनिंग मिली है सही जगह, एकदम सही जगह, इसलिए आज ये मुमकिन है। दिल परेशान तो करता ही है, मगर यूं ही दिल परेशान करता रहे, क्योंकि संगीत चीज़ ही ऐसी है कि जब तक दिल को झंझोड़ नहीं देती तब तक उसकी समझ आती ही नहीं। सुमित को बहुत प्यार और आशीर्वाद। महेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत बधाई कि ये खुशी का दिन आप देख सकें। थैंक यू सो मच। अनूप, आपको हरि जी प्रणाम फिर से करता हूँ। अरुण जी नमस्कार, नमस्कार। सुनील, आई सौ सुनील हैं कि निकल गए? सुनील, हाय बेटा। नारायण जी नमस्कार। आई एम फंबलिंग बिकॉज आई एम टू हैप्पी for this beautiful occasion, beta. God bless you. खूब फतेह करो. God bless you. Take me back. और अब जाने से पहले एक ख़ास काम। आज हम मिले एक ऐसे इंसान से जो अब तक बालिग नहीं हुए हैं। उनकी सालगिरह हाल ही में मनाई गई थी, लेकिन केक खाने का मौका हमें नहीं मिला था। तो इससे पहले कि वो बालिग हो जाए और हमें केक ना खिलाएं, हम गुलजार जी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टेज पर आएँ, और एक ख़ास केक का इंतज़ाम हमने किया। चाय तो हम भी पिएंगे। मे वी हैव द बर्थडे बॉय ऑन स्टेज and also the birthday cake. जी, mic देना. Can someone get him a mic? Navdeep, you have to start coloring your hair white now. You have to start coloring your hair white. It doesn't look like he's your grandson.
May I request Sunil ji also to please come on stage? जी बहुत 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 शुक्रिया, ये मेरे लिए बड़ा खूबसूरत सरप्राइज़ है। और मैं समझ रहा था कि हाँ लोगों को पता है या नहीं कि मैं 19 बरस का हो गया हूँ। और मैं इनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, और ये जानते हैं। मैंने एक बार इनसे, जिस वक्त लेखन की मुहूर्त थी, लता जी की पिक्चर थी, तो मैंने इनसे कहा था आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है, और इनके साथ मैं फ़ोटो खिंचाई थी। उस वक्त इन्होंने ही हेड ऑब्लाइज हुई। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि माई ग्रैंडसन इज स्टडिंग विद हिज ग्रैंडसन इन धीरू भाई स्कूल में। सो आई वॉन्ट यू टू बी, आई जस्ट वॉन्ट टू फील द सेम एंड वॉन्ट टू फील यंग। सो मैं उस ज़माने के लिए आपका हाथ पकड़ के ये काटना चाहता हूँ, ताकि हाथ तो गुलजार साहब सुमित का भी पकड़ना पड़ेगा, उनका बर्थडे भी है 31 को। क्रिकेट हैज़ बीन माय फेवरेट गेम। मैं चाहता था कि बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे खूबसूरत जन्मदिन आप और मनाएं, और जन्मदिन की मिठास ऐसे ही हमारे साथ शेयर होती रहे। थैंक यू, इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gulzar Saab. Happy birthday to you. गुलजार साहब, I only believe in centuries. अब तो 90 हो गए, another 10 years. अब सिर्फ एक ही बात है कि जब when you get to the 90s, you have to play with a straight bat. मैं जानता हूँ कि you have always won the most difficult matches in most difficult innings. अब मैं आपकी तरह का बैट्समैन होता तो वादा भी कर लेता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके कहने की वजह से कोई बाउंड्री लग जाए। Thank you, God bless. Thank you so much. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you to all our esteemed guests who have come here this evening, who took out time to shower blessings on Sumit. I'm told that even my friend Kunal Ganjawala is here. Welcome, Kunal. You missed seeing the two beautiful videos, but we'll make sure we play them again for you. जितने लोग यहाँ आए उनका तहे दिल से शुक्रिया, और we request all of you to stay back and enjoy some tea, coffee and snacks, and thank you for being here with us. Thank you. Good